आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सबका खैर मकदम है। नाजरीन, शहर बेंगलुरु में एक बड़ा एक्सपो होने वाला है का तकरीबन 10 कंट्रीज़ जो है, जैसे कि सऊदी अरब है, दुबई है, उसके अलावा बहुत से कंट्री जो है इंडिया को आ रहे हैं। ख़ास करके बेंगलुरु में होने वाला है। All the governmental organizations, country representatives and the individuals worldwide, and each of your enthusiasm has definitely filled our passion to create a platform where culture unite, inspire. Ladies and gentlemen, it's now time to be lighting the lamp and invoking the blessings of God. So may I please take the honor of inviting the dignitaries on the dais, please. Audience, kindly join me and please put your hands together as we welcome Mr. Santosh Hegde, the former Judge of Supreme Court of India, the former Solicitor General of India and Lokayukta for Karnataka. Indeed, a great honor to have Sir to be a part of our humble occasion. Ladies and gentlemen, please put your hands together to welcome on dais with us, Mr. Santosh Hegde. Ex-MP Rajya Sabha, Mr. Hanuman to please come and join us on that. Ladies and gentlemen, let's welcome Sir with a big round of applause. Now for Karnataka, Mr. Santosh Hegde. As I mentioned, it's indeed a great honor to have Sir to be a part of this wonderful evening. Thank you so much for taking our time and being a part of this occasion for us, Sir. Mr. K. Ravi, the Vice President of PCIC and the Managing Director of Woodland India Private Limited. Let's give a big round of applause to Mr. Ravi, sir. And I think somebody on the stage, a bigger round of applause because he's, from the time he's walked in, sir, is there with such a pleasant and beautiful smile. So let's give a big round of State Commission for Women. Indeed, an honor to have Ma'am to be a part of this wonderful occasion. Thank you so much for taking our time. With lots of love addressed Raghavendra Anna, a dedicated advocate for social causes and a big reason, a big backbone and support for the entire cause we've all gathered here today. Let's give a big round of applause for Mr. Raghavendra. General Secretary of KPCC, let's give a big round of applause for Mr. T.M. Shahid. Thank you. May I request someone, sir, to please present a token of gratitude to Mr. Hanuman. ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ I'm not sure if you can see what is happening up front here. Global Cultural Expo Bengaluru Utsav 2025. As our dignitaries grace the occasions, audience, please let's hear a thundering round of applause. Fantastic. Governors, are we ready? Yes? The team, are we ready to be giving out the logo that we've been working so hard on for years? Are we ready? Jesse ma'am? The logo of Bharat Global Culture Expo Bengaluru Utsav 2025. Raghavendra sir, I request you to please do the honors. Alright, audience, 10, 8, let's come together. 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, the Bharat Global Culture Expo Bengaluru Utsav 2025 presented by Mariah Events. Ladies and gentlemen, let's hear a big round of applause
to our magnificent celebration. So thank you once again to each one of you for being a part of this big moment for all of us. And thank you so much, Ravindra sir and the entire Graya team for doing the honors. Thank you so much. I request all of you to please kindly be seated off stage. आइए मेरे साथ बात करते हैं। इरफान है, इरफान को पूछते हैं इस जो इवेंट्स कर रहे हैं इसका नाम क्या है और कितने कंट्री के लोग आ रहे हैं, यहाँ पर क्या क्या स्टॉल लगते हैं। सर ये इरफान सर, न्यूज़ 16 डिजिटल में आपका खैर मकदम है। ये जो आप इवेंट करने जा रहे हैं इसका नाम क्या है? और इस इवेंट का नाम है भारत ग्लोबल कल्चरल एक्सपो। ये इवेंट अप्रैल में हो रहा है 9 तारीख से 15 तारीख तक। आज उसका उद्घाटन है, लॉन्चिंग और प्रेस मीट है। और इस इवेंट में टोटल 10 से 12 कंट्रीज़ आ रहे हैं, अरब कंट्रीज़ और यूरोपियन कंट्रीज़ आ रहे हैं। कंट्रीज़ से बात हो चुकी है, काउंसलेट से बात हो चुकी है, सबसे बात हो चुकी है, सब लोग आ रहे हैं। और ये 6 दिन का एक्सपो है। 6 दिन के एक्सपो में 6 अलग अलग तरह के आर्टिस्ट आएंगे और उनका परफॉर्मेंस बताएंगे। और ये पैलेस ग्राउंड में हो रहा है। टोटल 700 स्टॉल्स होंगे। 700 स्टॉल में 150 खाने के स्टॉल्स होंगे, फूड के, और बाहर के स्टॉल्स होंगे, कल्चरल और अदर कंट्रीज़ के भी स्टॉल्स होंगे। तो इसका बजट है लगभग 30 से 35 करोड़ का। तो हमने ये बहुत बड़ा बजट है तो कर्नाटका गवर्नमेंट से भी बात की, तो हमारे डिप्टी सीएम डी.के. शिव कुमार साहब ने भी अश्योरेंस दिया कि हम इस इवेंट को सपोर्ट करेंगे और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका सपोर्ट करेंगे। और इसमें हम पेविलियंस बनाएंगे। जैसा आपने देखा होगा दुबई एक्सपो होगा, दुबई एक्सपो में पेविलियंस होंगे, उसी तरह के इधर भी एक्सपो में पेविलियंस होंगे। जैसा कि रशिया का पेविलियन होगा, अलग अलग कंट्रीज़ के पेविलियन होंगे। एक पेविलियन में 14 स्टॉल्स रहेंगे। इसमें आपकी जिम्मेदारी क्या है? टोटल 34 एकर्स में होगा, ये कृष्णा विहार में होगा। इसमें मैं बिज़नेस डेवलपमेंट मैनेजर हूँ और एक्सपोर्टर और एज वेल एज द इसमें स्पॉन्सरर मार्केटिंग हेड भी हूँ। क्या डेट को होने जाने वाला है? ये अप्रैल 9 तारीख से 15 तारीख तक होगा, तो अप्रैल के 2025 में। तो आज एक लॉन्च है, फिर नेक्स्ट लॉन्च बॉम्बे में होगा और अलग अलग तरह के आर्टिस्टों को बात कर रहे हैं, वो भी आएंगे। हो सकता है अदनान समी भी हमारे साथ इधर परफॉर्म करेंगे, उनसे भी बातचीत चल रही है। अच्छा, तो बड़े पैमाने पर जो है यहाँ पर जो है इसके बॉम्बे के बड़े बड़े आर्टिस्ट आएंगे, यहाँ पर स्टेज पे प्रोग्राम्स होंगे, तो लोगों को यहाँ पर आने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बस हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संजय शेट्टी भाई, वो सुनील शेट्टी के भाई हैं, वो हमारे साथ हैं। और हलीमा जी हैं, वो इंटरनेशनल टर्की काउंसलेट में काम कर रहे थे, उन्होंने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और चेन्नई की टीम है बहुत, और केरला की टीम है, कई तरह के टीमें ही हैं। हमारे टोटल टीम में 40 लोग हैं और हम चाहते हैं कि शो को कामयाब करें और कामयाब होने के बाद इमीडिएट नेक्स्ट ईयर सीज़न 2 रखा जाएगा। और हमारी इच्छा है कि जब हो जाएगा तो हमारे को अदर कंट्रीज़ में भी हमारे को ऑफ़र मिलेंगे। ऑलरेडी टर्की से बात हो रही है, मालदीव से बात हो रही है। हमारे मालदीव्स के डेलीगेट्स भी आने वाले थे, कुछ वजूहात से वो नहीं आ सके। मैं चाहता हूँ कि आप तमाम लोग फैमिलीज़ के साथ आए। ये कल्चरल प्रोग्राम है, हम स्कूल्स को भी टारगेट कर रहे हैं, कॉलेजेस को भी टारगेट कर रहे हैं ताकि फैमिलीज़ आ सके। इसलिए हम मंथ ऑफ अप्रैल रखे, छुट्टियां हैं,
तो वी आर इन्वाइटिंग एवरीबडी in the month of April to school, colleges. It's a cultural program and tourism program रहेगा. इंडिया को टूरिज़म की, बेंगलुरु कर्नाटक की बहुत ज़रूरत है टूरिज़म को. तो वैसे तो हम्पी में आ रहे हैं, तो इधर भी हम लोग दावत दे रहे हैं टूरिज़म के लिए. और ट्रेड, स्पेशली ट्रेड अभी थोड़ा लगभग 19-20 हो रहा है, और ट्रेड को भी हम बढ़ावा देंगे. एक बात ख़ास है कि बेंगलुरु के अंदर जो है ट्रैफिक इतनी मुश्किल होती है, खास करके पैलेस ग्राउंड में आने के लिए लोगों को. तो इसके लिए क्या लोगों को टाइमिंग्स रहेगा आने के लिए? ये इवेंट सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगा. सुबह 11 से 5 तक चलेगा. 6 बजे से प्राइम टाइम रहेगा. 6 बजे से आर्टिस्ट लोग परफॉर्म करेंगे. सुबह से 10-11 बजे से स्टॉल्स चालू हो जाएंगे, और सुबह 11 से रात के 10 तक रहेंगे. और स्टॉल्स पूरे रहेंगे, और फूड स्टॉल्स भी रहेंगे. फैमिलीज़ के साथ लोग आते हैं, एंटरटेन कर सकते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया इरफान भाई आपका. थैंक यू, शुक्रिया. आज शाम को हम अनवेल कर रहे हैं हमारा भारत ग्लोबल कल्चरल एक्सपो. ये एक यूनिक इवेंट है जो आज तक एशिया में कभी हुआ नहीं है. मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि 3 ऐसे अलग अलग एक कल्चर, एक टूरिज़्म और ट्रेड एक ही अम्ब्रेला के नीचे आया नहीं है. ये पहली बार ऐसा हो रहा है. इसका ये कारण है कि जब भी आप कहीं जाते हो ट्रेड के लिए, तो आप जगह के कल्चर के बारे में जानते हो, और टूरिज़्म तो ऑटोमेटिकली हो जाता है. मतलब होटल्स और स्टे में आपका मोरलेस और देखना, और हर प्रांत अलग होता है. हालांकि हम उसमें कॉमनैलिटी ढूंढते हैं, अपना जो भी मूल कॉमनैलिटी होता है. इसके अलावा ये जो शो है ये करीब 9 और 14 अप्रैल 2025 में होने वाला है. और होपफुली बेंगलुरु में ये ऐसा इवेंट पहली बार हो रहा है. इसके बाद कई और ऐसे इवेंट्स कंटिन्यू हो जाएंगे. तो इसके बाद और क्या करने का आइडिया है सर? फ़िलहाल हम फोकस कर रहे हैं बेंगलुरु में ही. इसके बाद हम शायद कोई और इवेंट ले आए बेंगलुरु में. लेकिन अगर भारत ग्लोबल कल्चरल कंटिन्यू होता है और हमें बेंगलुरु में करना होगा, तो हमें इससे बड़े पैमाने में करना होगा, क्योंकि फ़िलहाल हमें 43-45 कंट्रीज़ का गो अहेड मिला है. हम चाहेंगे कि कम से कम 100 कंट्रीज़ हो, और इन कंट्रीज़ के साथ हमें हमारा भारत का कल्चर भी आगे बढ़ाने का मौका मिले. मेरा शुभ नाम संजय शेट्टी है, राधा संजय शेखर शेट्टी है जी. जिम्मेदारी क्या है? मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ये. हालांकि ये शो हम 2 साल से इसके बारे में इंसेप्शुलाइज कर रहे हैं, और आज जाके हम ये यहाँ तक पहुँचे. इसके आगे आप सबका आशीर्वाद चाहिए. To Bharat Global Culture Expo, we are doing a unique expo, and people from all over the world, countries from all over the world is going to participate. It's a very unique culture and trade expo. We have 45 countries participating in this. There will be many international and national artists performing also. It's a 5-day event at Palace Ground in April 2025, and it's going to be a unique experience for everybody. Please welcome, be a part of it. हमारा प्रोग्राम में सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, एम्बेसी से ऑनररी काउंसिल्स, और लॉट ऑफ गेस्ट्स फ्रॉम अब्रॉड. इन्वेस्टमेंट delegations have come from Turkey, from France, from Peru, and we have lot of VIPs who are supporting this project for us, who are standing by us. And since this is a very unique event where we are promoting culture, tourism and trade also. Idondu first time in India where 3 platforms are under one roof. So already till now we have around 45 countries showing interest as of now. So we are yet to enter the market. We hope to have around 100 plus countries by April, and this will be the biggest event in India, and we are making a brand Bengaluru for this event. Sudarshan Sampath Anta, and today it's a very special weekend starting with this Karnataka Global Festival happening at Sheraton. This is something, not only it's a trade fair, it is more of cultural expo, wherein each country, there is about 10 countries I understand is participating,
and each country is showing their cultural and their habits and some of the trade fairs and tourism of their individual country to showcase in this cultural fest that is happening here. It is a very interesting event wherein each culture can be relished by everybody here, and this is going to be one of the biggest fest that is happening here, which I'm looking forward, and everybody should come and participate and have a look at this cultural fest. नाजरीन, इस एक्सपो में जगह आकर जो है आप कल्चरल प्रोग्राम देख सकते हैं, क्योंकि ये तकरीबन 10 कंट्री के लोग जो है यहाँ पर आते हैं और बड़े बड़े आर्टिस्ट जो है आपके वो स्टेज पर मिलेंगे, आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह इसी तरह मेरे साथ न्यूज़ 16 डिजिटल में बने रहे, ताज़ा तरीन खबरें पहुँचाता रहूँगा। मैं सोहेल पाशा, कैमरामैन रहमान के साथ।